the preparation. So okay, we are recording this session. We have started preparation for the PTE. So your desired score is how much? 65 or 79? 70. 70. Which program are you Yes. applying for? I am applying for Canadian immigration. Okay, so for Canadian immigration, you have to do the academic PTE core, not PTE academic. Are you aware? Yes, PT core. PT Yes. core. Yes. I just wanted to tell you because the test is so expensive and by mistake, if you don't know, then you might be giving a wrong version of the test. So almost PT academic and PTE core are same. There are just two things which are different. At the essay writing and the email writing and the open response thing. But otherwise, the exam is all same. So have you done any mock yet? No. Are you aware of the pattern of the exam? Yes. Okay. I have the So template. huh? I have template of all the articles or sections of test. Okay. Okay. Let me tell you one thing. I don't want to like scare you, but you know, template is the last thing you should be having the knowledge about because people are, I know, crazy about template. But if you are not prepared properly, and if you don't know how to use the template, then template is of no use to you. Template means something which is sample. It's just a sample. Even if you memorize the template but you don't know how to use the template, if you don't know how to use the sample answers, you will not be able to score it. मतलब सॉरी बट लोग पागल हुए हुए होते हैं, टेम्पलेट चाहिए मगर उनको टेम्पलेट यूज करना नहीं आता, फिर वो कहते हैं कि जी ये टेम्पलेट चल नहीं रहा, वो टेम्पलेट चल नहीं रहा. रीजन बीइंग the answer key for the PT exam is not the template. जो आपके टेम्पलेट में चीजें लिखी हुई है वो उनकी आंसर की नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर सवाल का एक Yes, आंसर sir. होता है, ठीक है. हर जी. क्वेश्चन पेपर का एक आंसर की होता है. तो आंसर की जो टेम्पलेट है वो डेफिनेटली आंसर की नहीं है. कीप दिस इन माइंड. Template is just to guide you to give you how to answer some question in a structured way. ये नहीं है कि आप यहाँ haphazardly कोई आंसर दे रहे हो, ठीक है. The actual answer to the question is in the exam itself. जो पेपर के अंदर सवाल लिखे हुए ना वो सवाल ही जवाब है. आपने सिर्फ उनको with confidence, with fluency, with good pronunciation बोलना है. That's it. Attempt करना. That's it. चाहे उनका रिटर्न है चाहे उनका रीडिंग पार्ट है, if it's a speaking part, if it's a listening part, the question that they ask you, the answer is inside the question. It's just how quick you are to pick the question. Your name says doctor. I don't know if you're an MBBS doctor or a PhD doctor, but if you are I'm any of it, if you are any of it, your IQ would be very good. I know that, and your ability to pick the question and answer it within 1 to 2 minutes, I know you will be having the ability. You are an MBBS doctor, no, I'm PhD doctor. PhD doctor. So then it should not be an issue for you. English grammar should not be issue for you. I'm also a PhD. Rules should not be an issue for you. The only main Your thing is subject, ma'am. Excuse me, your subject. management. Okay. So for you, the main thing should be कि आपको ये याद रखना है कि आपने 2 मिनट के अंदर अंदर जवाब देना. ये एग्जाम जो है वो IQ का है और टाइम के अंदर अंदर, वरना आप गोरे की जुबान ना 2 घंटे में नहीं सीख सकते. या 2 घंटे में अच्छा, आप गोरा. ये जी एक्सक्यूज मी, आप बता रही हैं कि मतलब जैसे रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन है, तो अब उसमें जो है हम क्वेश्चन जो उन्होंने स्क्रीन पे डेफिनेटली एक आ रहा है उसी को रीड कर देंगे तो क्या हमें स्कोर्स मिलेंगे उसके? यही तो है, क्योंकि जो सवाल के अंदर लिखा हुआ है ना वही उन्होंने हम्म. आंसर में लफ्ज डाले हुए, कीज डाली हुई है. आपने सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस से पढ़ना है. मतलब फंबल नहीं करना, गलत नहीं पढ़ना. ऐसे पढ़ दो, चाहे ऐसे पढ़ दो, जो लिखा है वही मतलब पढ़ दो. हाँ वो पढ़ो मगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से. हाँ टेम्पलेट हाँ, ये बात तो है ना. हाँ, यही मैं हाँ आपसे पूछना चाह रही हूँ. हाँ, मगर लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ते. ज्यादातर डिस्क्राइब इमेज ने आपने देखा होगा, कह रहे होते हैं कि जी मेरा डिस्क्राइब इमेज खराब हो रहा है क्योंकि मेरे पास टेम्पलेट नहीं. हम्म. नहीं, डिस्क्राइब इमेज में जो तस्वीर में लिखा हुआ है ना वो बोल दो, जी. मगर तरीके से. लोग क्या करते हैं, वो टेम्पलेट इतना लंबा होता है, वहां पे सिर्फ 30 सेकंड्स दिए जाते हैं आपको, तो वो टेम्पलेट पढ़ते हम्म. पढ़ते 30 सेकंड्स गुजर जाते हैं, पीछे जो असल मकसद पढ़ना था वो पढ़ा ही नहीं. तो
आप टेम्पलेट सही यूज करो, मगर जो तस्वीर के अंदर लिखा हुआ है उसको एक स्ट्रक्चर तरीके से, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स है, कि आप रिस्पॉन्ड सही। किस तरह कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको, जी जी। आपने अगर पीटी अगर मॉक देखा है, इफ यू हैव सीन द एपी, हैव गॉन थ्रू द एपी, एपी? यस यस, आई हैव द सब्सक्रिप्शन फॉर दैट। Oh, very good. Have you given any mock? नो। No. I would suggest that take a sitting and do one mock, even if you know it or not. ऐसे ही बैठ के ना ओके। मजाक में चिल में आप एक मॉक दे दे, ठीक है। दिस विल गिव सही यू एन आइडिया दैट व्हाट एग्जाम इज ऑल अबाउट, और मॉक से आपको आपकी वीकनेसेस पता चल जाएंगी कि वेयर आर यू लेकिंग, सही। ठीक। ओके, लेट मी वॉक यू थ्रू इट। रीड स्पीकिंग इज अबाउट कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, मगर एक्सेंट नहीं। लोग फेक एक्सेंट बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो मार खाते हैं। देखिए, इनके सॉफ्टवेयर इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि वो आप किसी भी एक्सेंट में बोलोगे ना वो समझ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियंस हैं, उनका एक्सेंट अलग है, वो जीरो नहीं बोल पाते, वो जीरो बोलते हैं, मगर उस पर उनके मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि उनको पता है ये बोलते हैं सही ऐसे। चाइनीज का अपना एक सही। एक्सेंट है, अरब्स का, अरब टी नहीं बोल पाते, ठीक है, वो हम्म। दैट को दैट पढ़ते हैं। तो ये उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर, तो ऐसे। ये मसला नहीं करना, ठीक है ये। और गोरे बनने की कोशिश ना करें, फेक एक्सेंट ना करें, और वो ना बड़े वो, आई वांट टू से दैट, मतलब वो ना एक शो ऑफ ना करें। सिंपल नॉर्मल नेचुरल। फ्लैट तरीके से जो एक बंदा, हमारी एक दूसरे से कन्वर्सेशन होती है उस पे बात करें, दैट्स इट। और सही। दूसरा, ग्रामेटिकल रूल्स को ख्याल रखें। रीडिंग में क्या करते हैं लोग, रिपोर्ट की तरह, मतलब कोई नेचुरल पॉजेस नहीं लेते। बस वो उनको होता है फ्लुएंसी का मतलब है बोलते जाना, इसका मतलब ये नहीं है। वो मैंने इतने डेमोस लिए हैं, मैंने ऑलमोस्ट 36 डेमोस लिए हैं अभी तक, उससे भी ज्यादा 40 लिए होंगे। सब में मैंने देखा है हम्म। कि वो कॉमा और फुल स्टॉप पे रुकते ही नहीं है। वो भाई, प्रेप में सिखाया जाता है कि कॉमा जहाँ है वहां पे आपने, जैसे एक इतनी देर के लिए रुकना पोज है, लेना है। फुल स्टॉप है तो इतनी देर हम्म। के लिए आपने रुकना है। वो रुकते नहीं है, वो कहते हैं जी सही। फ्लुएंसी। दिस डजंट मीन फ्लुएंसी का मतलब है कि आप फंबल ना करो, जैसे मैं ऐसी चीज ना करो, बाकी आप नॉर्मल हम्म। पढ़ते रहो। और कोई भागने की जरूरत सही। नहीं है, कोई चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इतना चीखने चिल्लाना रॉन्ग चीज है। वो समझते हैं रीड अलाउड का मतलब है जोर से बोला। अब मैं भी ये समझती थी, तो मैं जब एग्जाम में बैठी हुई थी 3 दफा एग्जामिनर ने मुझे कहा कि बीबी आहिस्ता बोले, उसने कहा आप जोर से बोलेंगे मैं आपको आप बात। कहाँ, आपने किस पर्पस के लिए दिया था? मैंने इमिग्रेशन के लिए दिया। कौन सी कंट्री की इमिग्रेशन? मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर रही हूँ। सही। हाँ, तो तो इसलिए हुआ ठीक है। आपका? फिर आपका तो है काफी पुराना है, तो कहाँ तक पहुंचा है आपका काम? मैं अभी चल रहा है प्रोसेस में, इतना आसान नहीं है, हमें लगता है बड़ा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। वो दूर से बड़ा आसान लग रहा होता है। वो छोटी छोटी चीजों पे ना उनको, उसको कहते हैं रेड टेपिंग। तो वो छोटी छोटी हम्म। चीजों के पीछे पड़ जाते हैं कि ये तो ये कैसे, तो ये कैसे, तो ये ऐसे, तो ये ऐसे, तो ये ऐसे। तो उनका असेसमेंट प्रोसीजर, आई डोंट नो, हैव यू गॉन थ्रू, आप असेसमेंट कराने पड़ते हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स असेस कराई है, पीएचडी कराई है? जी जी, मैंने करवाई। हाँ, तो आपको पता होगा कि असेसमेंट में टाइम लेते हैं। फिर हाँ, वो तो अबाउट 2 to 3 हाँ, मंथ्स तो है ना वो लग, तो उसमें टाइम लग जाता है। एग्जैक्टली exactly. उसमें कागज वो करने जो है वो जमा करने में, अरेंज कर, असल में मेरा था चाइना का, तो चाइना का ये लोग क्या करते हैं कि उस पे ज्यादा वो हम्म। करते हैं, चिक चिक पिक पिक ज्यादा करते हैं। आप क्योंकि पीएचडी चाइनीज वहां से कहता है कि आपकी कोई भी, चाइना से? सॉरी, आपकी पीएचडी चाइना से है? ये मेरी स्कॉलरशिप पे चाइना से, चाइना में फ्री मुफ्त की डिग्री। हाँ, सही सही। चलिए तो अच्छा है वो, बहुत सारे लोग जाते हैं उसमें तो। अच्छा, आपको हाँ, मेरा नंबर कहाँ से मिला मैडम? ये मैंने वहां से उठाया है, ऐप यूनि के वो ग्रुप नहीं है, हम्म। मैं वहां पे हूँ ना, तो वहां से मैं देख ली थी इसलिए। ओके, सही। तो रीड स्टडी अलाउड, ग्रुप जो है। हाँ हाँ, ग्रुप में, हाँ। रीड अलाउड, हाँ। रीड अलाउड इज लाइक, हाँ, रीड अलाउड होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो हमेशा सवाल लोगों से भी पूछती हूँ, यू हम्म। नो हाउ मेनी रीड अलाउड पैराग्राफ्स, मतलब क्वेश्चंस कितने होते हैं? 6 to 7 आई थिंक होते हैं उसमें। अच्छा, 6 7 9 इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पूछते हैं। दे ट्राई टू हम्म। जज यू, चेक योर इंग्लिश इन डिफरेंट वैरायटी। तो कुछ क्वेश्चंस सही। ऐसे होते हैं जिसमें ईएस ज्यादा होते हैं या ईडी ज्यादा होते हैं, कि क्या आप ईडी हम्म। प्रोनाउंस कर सकते हो कि नहीं, क्या आप एस प्रोनाउंस कर सकते हो कि नहीं। कुछ सही। ऐसे होते हैं जिसमें कॉमास एंड फुल स्टॉप ज्यादा होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें टंग ट्विस्टर लफ्ज ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मुश्किल लफ्ज होते हैं, जैसे किसी फ्रेंच बंदे का नाम होता है, तो वो तो हम तो कभी भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते, राइट।
तो दे जस्ट ट्राई टू जी चेक कि आपको अगर कोई डिफिकल्ट चीज आती है तो आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। ठीक है। रिटेल सही। लेक्चर में यह है कि जी आप क्या सुन पा रहे हो, क्या अगले बंदे का एक्सेंट, तो उसमें भी ज्यादातर एस का मसला हो जाता है, समझ नहीं आता उसने स्टूडेंट बोला या स्टूडेंट्स कहा था, राइट। फिर सही। इसी तरह आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपकी जीके नहीं यूज कर चेक कर रहे होते, लोग ये समझते हैं वो आपकी जनरल नॉलेज चेक कर रहे हैं, अगर आंसर नहीं होता वो चुप हो जाते हैं, नहीं, द सिंपल थिंग इज उसने जो बोला है, पूछा है सवाल, उसी को एज अ फ्रेज आंसर कर दिया, अगर आपको नहीं आता तो, लाइक हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, अगर आप पता है हम्म। 7 का बोले देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ठीक है। या अगर नहीं पता तो आप सिंपली बोल दो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, तो वही बात उसको बता दो। फिर तो उससे आपका मार्क्स आता आते हैं? है जी। मैंने कहा उससे मार्क्स आते हैं। देखिए यही मैं लोगों को मना करती हूँ कि ये ना सोचे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना पेपर कर सकते हो ना, अगर देखें अगर आप 90 पेपर हम्म। करके आओगे 100% आपके 90 हम्म। मार्क्स आए, क्योंकि कुछ हम्म। गलती आप करोगे और कुछ एआई हम्म। आपकी बात को नहीं समझ सकेगा, राइट। सही 90 का सही। पेपर करके आओगे आपके 80 मार्क्स आएंगे, 80 का पेपर करके हम्म। आओगे 70 के मार्क्स आएंगे, 70 पेपर करके आओगे आपके 60 मार्क्स आएंगे। तो जब पेपर आप देने बैठे ही हो, आपके कितने अटेम्प्ट में आए हैं आपके इतने जो 80+? मैंने अलग से कर एक ही अटेम्प्ट, फर्स्ट, कितना टाइम आपने प्रिपरेशन की थी? मैंने उसको लग के 3 महीने की थी, वरना चलते फिरते क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ ना, तो चलते फिरते तो आप कह सकते हो कि इन टोटल 8 महीने की थी, मगर जो लग के करनी टोटल? होती है वो मैंने 3 महीने की थी। फिर वो तो आपने बहुत टाइम भी तो स्पेंड किया ना इस पे। हाँ अच्छा, क्योंकि आपके इसका कितना खर्चा आया? खर्चा, ये जो खर्चा वगैरह आपको बता रहे हैं, ये कितना बताया ये जो इमिग्रेशन के लिए? कंसल्टेंट के थ्रू करवा रही हैं या खुद ही कर रही हैं आप? देखिए कम से डिपेंड करता है, जैसे मैंने असेसमेंट खुद कराई, टेस्ट भी खुद हाँ प्रिपेयर वही ना। किया, मगर देखिए हम्म। कभी कभी कंसल्टेंट से हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई एक चीज अगर ऊपर नीचे हुई ना तो आप हंसते हो, हम्म। और ऐसे वहां ही है। पे उनके रेड टेपिंग बहुत ज्यादा है, पेचीदगियां बहुत ज्यादा जो हमें नहीं पता होती है, मगर तो ये है कि अभी कितने ये कॉस्ट आपको बताई है उन्होंने जिनसे भी आप मतलब कंसल्ट किए आप लोगों ने? मुझे अभी मैंने जो है वो असेसमेंट मेरा उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने उसको जो है वो अपील पे डाला हुआ है। नो, मतलब कोई रफली एस्टिमेट भी तो किसी बंदे ने दिया होगा ना कि अगर आप ये वो तो काम साढ़े चार करेंगे तो हजार इतना। डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बोलते हैं, 4,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब फैमिली आप है या फिर आप अकेली जा रही हैं? नहीं नहीं, आई एम ऑल अलोन। हम्म। अलोन। ओके। सही। ठीक है, फिर देन हेलो। आर यू अवेयर ऑफ द राइटिंग पार्ट। यस। समराइज स्पोकन टेस्ट आई थिंक उसमें है, और स्पोकन टेक्स्ट राइटिंग में नहीं है, हमारा स्पोकन टेक्स्ट लिसनिंग में लिखना पड़ता है, नाम उसका स्पोकन है, अटेम्प्ट उसको लिख के करना पड़ता है, मगर पार्ट वो लिसनिंग का है। जस्ट अ मिनट। उसमें समराइज रिटन टेक्स्ट है, समराइज स्पोकन नहीं, आप कौन से सेशन की बात कर रही हैं? राइटिंग। और वो स्पीकिंग और राइटिंग का तो एक अलग मॉड्यूल नहीं आता? उसमें ईमेल आ जाती है एक, हाँ एक ईमेल है और और एक समराइज रिटन एक टेक्स्ट। समराइज, हाँ समराइज रिटन टेक्स्ट है, सॉरी। ठीक है। रिटन टेक्स्ट है। हाँ उसमें भी लोग कह रहे होते हैं हमें टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, उसमें कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, आपने कुछ हम्म। मटेरियल ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है उसी में से उठा के आपने समराइज करके लिखना होता है, उसमें कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छा, इसमें आंसर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है ये जो हम टेस्ट देते हैं? नहीं नहीं है, हाँ नहीं है, खुद ही हाथ नहीं, से टाइप करना सर? हाँ हाँ पे नहीं है। तो क्योंकि इसमें तो है ना, मैंने ऐप में देखा है, इसमें तो हम कॉपी पेस्ट कर ऐप, लेते हैं। जी ऐप जो है ना वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मैं एक बात बता दूं, इस पे अपना आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐप बहुत इजी है, ऐप यूं नहीं, वहाँ मुश्किल है, वहाँ बहुत एग्जाम मुश्किल है। ठीक है। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो रीडिंग के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो भी बहुत आसान है, जो ऐसे आ रहा होता है वो भी बहुत आसान है। आप ये सोचे अगर हम्म। यहाँ पे आपके 70 आ रहे हैं ना तो वहाँ आपके 60 आएंगे, ओ। नहीं आते, मुश्किल है, बहुत रियल एग्जाम बहुत मुश्किल है। ये इनके पास तो कुछ मतलब आप समझ रहे हैं कि सैंपल जैसे पेपर्स नहीं होते वैसे सैंपल हम्म। पेपर्स है, पास्ट पेपर्स हैं, रियल तो फिर एग्जाम इन में पे डरा कितना नहीं रही, मगर कितना मुश्किल है। जो जी। वो अगर रियल एग्जाम जो है वो प्रैक्टिस करनी हो देन उसके लिए कोई ऐप नहीं है? बेशक वो बंदा थोड़े से वो ज्यादा पे करके परचेज कर ले। नहीं उसका नहीं है, उसका सिर्फ एक ये है कि उसका अपना एक मॉक आता है, बट उसमें होता है कि वो आपको एक रियल एग्जाम जैसा समझ ले कि 90% रियल एग्जाम जैसा उसका पैटर्न होता है, वो आप अटेम्प्ट करते हो,
और वो आपको स्कोर बता देता है, ना वो आपको आपकी मिस्टेक्स बताता है, ना वहाँ पे प्रिपरेशन की कोई मटेरियल है, कुछ भी नहीं है। तो वो मैंने खुद भी तो बाय कहाँ किया से? था। वो बाय किया था मैंने, बट पूरी प्रिपरेशन के व्हेन आई वाज रेडी कि हाँ अब मैंने टेस्ट देना हम्म। है, तो वो एक चेक करने के लिए मैंने दिया था, लिया था। तो वो कितने मार्क्स आए थे उसमें आपके? उसके उसमें मेरे जैसे स्पीकिंग में ना 77 आ रहे थे, रियल एग्जाम में मेरे 87 आए थे, ठीक है। और अच्छा, रीडिंग में मैं मतलब करीब करीब 80 के आ रहे थे। और तो ये रियल में जो हमारे पास है, ये जो एप यूनी है, इस पे जो मतलब मार्क्स आते हैं उस पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है कि हमारे रियल एग्जाम्स में इससे जो है वो रेलिवेंट ही होंगे? मैं स्पीकिंग का आपको बताती हूँ, स्पीकिंग में मेरे 80 से above कभी नहीं आए, रियल में मेरे 80 ठीक है। क्योंकि यार एप मैं यूनिक तो एक दो एप मैंने यूनिक करके है ना, जी जी, सॉरी, मैंने ना एक दो करके देखे, मेरे तो 60 ही आते हैं। अभी पता नहीं, मैंने स्टार्ट ही किया 60 65, बस यहाँ तक किया, तो मुझे तो वजह है, मैंने उसकी कहा। वजह हम्म। वजह है हम्म। क्योंकि ऐप यूनिक एक तो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं है, तो आपको मार्क्स कम देगा। हम्म। दूसरा, हम्म। आप जब पढ़ रही होगी पीछे शोर होगा, शोर होगा तो उससे आपके रेड रेड आ रहे हैं, रेड। जी, रेड आते हैं। हाँ, वो इसलिए कि पीछे शोर होता है, शोर होता है। अच्छा, मेरी दूसरा बात आप सुने, वो भी आप कह रही है ये शोर वाली बात, मैंने मतलब ऐसे यूट्यूब से मैंने देखा, मैंने कहीं से जो है ना ये कोचिंग वगैरह तो नहीं ली। वो तो यही बताते हैं कि मतलब आप जो है ना नॉइजी एरिया में ट्राई करो, क्योंकि ये जो एग्जाम रूम होता है वहां पे तो बच्चों ने शोर मचाया होता है अपना ही, वो ऊंची ऊंची लगे होते हैं। आप आपकी बात ठीक है, शोर वाली, और कहना ये चाह रही हूँ कि शोर वाली बात से, कम शोर वाली बात पे जाएंगी तो आपको वहां से कॉन्फिडेंट आएगा कि मुझे आता कितना है। आप आपके जो तो मार्क्स इसके कम जो आ रहे हैं तो इसके आपके 60 मार्क्स वाले, कम आ रहे इसके हैं। सिक्स एक मिनट, इसके मुझे 60 पे मेरी कितना बात किया समझो। जा सकता है? जी जी। 60 आ रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है आपकी गलती है, ऐसा नहीं है। पीछे शोर की हम्म। वजह से भी गिर रहे हैं, अभी किसी खामोश जगह पे जाके पता चले, ताकि आप खुद को सही से असेस कर सके कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। बात सही। समझ आई? जी जी। तो मेरे क्या होते थे, 70 से अब नहीं आ रहे होते थे शोर वाली जगह की। एक तो शोर की वजह से, दूसरा लैपटॉप से हम करते हैं, लैपटॉप से वॉइस इको करता है, फिर हम हेडफोन्स यूज करना हम्म। चाह रहे होते हैं तो हेडफोन्स में भी इश्यूज होते हैं। तो मुझे जी। मैं परेशान हो जाती थी आपकी तरह के मेरे 60 से अब नहीं जा रहे, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि सेलफोन लो और किसी खामोश जगह पे चले जाओ, क्योंकि सेलफोन का जो स्पीकर होता है ना, उसमें एको वगैरह का जी। इश्यू नहीं होता हमारे। तो उससे फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरे 80 तक जा सकते हैं। फिर हम्म। आप वाली बात शोर वाली ज्यादा है, वो इसलिए कि ताकि आप कॉन्फिडेंस लूज ना करो, कि तंग ना हो। जैसे घर में तो हम अगले बंदे को कह देते हैं यार चुप हो जाओ मैं तैयारी कर रहा हूँ, वहां नहीं कह सकते। सही। तो पहले अपने आप को तो जज करें, उसके लिए आपको खामोश ही रहना पड़ेगा। तो मैंने तो सही। ऑफिस में बैठ के भी प्रैक्टिस की है, क्योंकि ऑफिस में शोर होता है, घर पे हर डिफरेंट एंगल से की, इन्वायरमेंट में की, ताकि ना मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि अब आपको 60 पे सही। ऐसे लग रहा होगा कि आप गलत हो, ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसे ही, मैंने कहा पता नहीं वो, हम इतना ही तो नहीं मैं वही ना, गलत पढ़ती, अब मेरी जब आप प्रोनाउंसिएशन कॉन्फिडेंट, वगैरह सही है सारा कुछ। जब आप इनिशियल स्टेज में कॉन्फिडेंट नहीं है तो फाइनल एग्जाम की तो बात की बात आती है ना। सही। तो मैंने खुद भी बाद आखिरी दिनों में बड़े शोर के माहौल में बैठ के तैयारी की, जानबूझ के पहले खुद को तैयार किया, वहां तक लेकर आई, अपनी जो हम्म। कमी पेशियां हैं उनको ठीक किया, और फिर बाद में सही। कॉन्फिडेंस को देखा। तो आपकी ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये किस टाइम आप लेती हैं फिर? मैं तो अभी तो स्टूडेंट जैसे जैसे आप। स्टूडेंट को अवेलेबिलिटी जो उनकी होती है, क्योंकि मेरी 3 दिन मेरी यूनिवर्सिटी है, बाकी के 4 दिन मैं फ्री होती हूँ। तो हम्म। मैं जब स्टूडेंट अवेलेबल होता है तो मैं अवेलेबल होती हूँ। नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि जब बस सबकी ज्वाइन क्लास हो जाए, कंबाइन क्लास? मैं कंबाइन नहीं लेती, मैं 1-on-1 लेती हूँ। तो ऐसे फिर मैनेज हो जाता है? कितने स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास? में हो जाता है एक एक, क्योंकि 10 घंटे भी अगर आप करो वो भी है, दूसरा दिन भी बहुत ज्यादा है, तो हम्म। हो जाता है मैनेज। अगर क्योंकि मेरा ये है कि अगर एक बंदा पे कर रहा है तो हम्म। वो डेडिकेशन से आप पढ़ो। सही। तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है मेरा मैनेज हो रहा है, क्योंकि मैं वो टाइम ही ऐसे दे देती हूँ कि किसी का टाइम क्लैश होता ही नहीं है। तो ये जो अभी स्टूडेंट्स आपके चल रहे हैं, कितने मार्क्स ले रहे हैं? जिनके अच्छा कोई मैं आपको रिजल्ट्स बताती हूँ वगैरह तो मेरे, आए होंगे। हाँ मैं यूजली मेरे पास जो बच्चे वो आते हैं जो ऑलरेडी एक अटेम्प्ट में हम्म। फेल हुए हुए होते हैं। हम्म। उन्होंने कोचिंग सेंटर में, आपसे सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, मैं क्यों बोलूँ, मैंने आपके पैसे अगर मैं आपसे छीन भी लूँ, किसी से ले भी लूँ, तो कितने दिन खाऊंगी।
तो एक लड़की मेरे पास आई थी, उसका स्पीकिंग खराब था, बाकी ठीक थे। हम्म। तो फिफ्टी हम्म। फोर पे थी, तो अभी उसने टेस्ट दिया है, उसके कितने आए हैं, आई थिंक 78 आए हैं, उसको 65 चाहिए थे। फिर इसी तरह एक साहब सही। हैं, उन्होंने कहीं और कोचिंग सेंटर ली हुई थी, तो हम्म। उनके बाकी में सब में ठीक है, और स्पीकिंग में 70 आ गए। तो फिर वो मेरे पास आए कि करें, तो मेरे पास ज्यादातर खराब केसेस होते हो ही आ रहे होते हैं। तो कितने दिन में करवा देती हैं आप ये तैयारी, जितने आप बता रही हैं ये स्कोर्स बच्चों के आ रहे हैं, कितने जैसे दिन में मैंने वो आपको ले लेते पैटर्न हैं? पैटर्न वो पैकेज दिया ना, तो फिर वो पैकेज हम्म। जितने जो उनको कंफर्टेबल लगता है वो वाला पैकेज लेते हैं। नहीं, एक मतलब आपका भी तो इतना, मतलब आप ट्यूटरिंग कर रही हैं, कोई एक्सपीरियंस होता ही है ना कि कितने टाइम में जो है ना ये इतनी इतने बैट्स आ जाते हैं, कितना टाइम लगाए तो। देखिए वो बंदे की अपनी एबिलिटी पे भी है ना, किसी के पावर पिकिंग पावर अच्छी है, किसी की नहीं है, किसी की ग्रामर हम्म। अच्छी है, किसी की नहीं है। ठीक है, क्योंकि जी। एट द एंड ऑफ द डे आपने जाके वहां परफॉर्म करना है, राइट। ऐसे ही है। ठीक है। अब आप जितनी विलिंग होंगी, आप जितनी मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगी, जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने इतनी दफा समझाया कि भाई टेम्पलेट की जान छोड़ो, फिर भी टेम्पलेट के पीछे वही हुआ, जब वहां गए तो पता चला कि जी टेम्पलेट के चक्कर में उनके मार्क्स गए। नहीं तो आप क्या कहती, खुद से बोले? नहीं, टेम्पलेट को यूज करने का तरीका होता है। सही सही सही, ठीक है, मैं फॉलो कर रही हूँ आपकी बात। उसको सही। यूज करने का, जैसे हम बच्चों को सैंपल पेपर दे देते हैं ना, कि हम्म। जी जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हम उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाते हैं, मगर वो हम्म। हम एग्जैक्टली पेपर तो उठा के नहीं देते ना, कुछ उन्होंने खुद भी तो ऐड ऑन करना होता है, फिर एग्जाम जी लेने का ऐसे ही फायदा। है। सही। तो ये है। अच्छा, इसके आपके पास इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो पीटी कोर का है? ये वहां पे होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके अल्लाह भला करे, जो पीटी ऐप है ना, वहां पे डाउनलोड फाइल पड़ी हुई है। पीटी की ये जो ऐप है इसके डाउनलोड्स में? हाँ जी। इसके डाउनलोड्स तो नहीं नजर आ रही कहीं मुझे। है। स्टडी मटेरियल है लिखा हुआ, स्टडी मटेरियल डाउनलोड्स। हाँ, वहां पे जाएं, वहां पे पहले सबसे पहली ऑप्शन होगी। नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा आप उसको डिस्कवर ब्राउज करेंगी ना ऐप को, अभी न्यू न्यू है ना, करेंगी तो फिर वो आपको मिल जाएंगी चीजें। इसमें तो यही डॉक्यूमेंट्स आ तो रहा है कि लेटेस्ट लेटेस्ट मटेरियल है और पीटी स्टडी मटेरियल है, बस और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने आज चेंज की है ना ये ऐप की चीजें कुछ, अच्छा वो पीटी कोर का इन्होंने ऐड किया है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। मेरे ख्याल से शायद इस वजह से ना हो। फिर अगर उन्होंने ऐड किए तो चीजें, हर चीज उन्होंने अपडेट की होगी। लेकिन यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही चीजें ना। चलिए, मैं ना आपसे फिर कांटेक्ट करूंगी, ठीक है। अगर मैंने फर्दर कंटिन्यू करना हुआ ना, हम्म। फिर मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगी। मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा डॉक्टर शुमाला। ठीक है, मैं आपका ना नंबर सेव कर लेती हूँ। तो अगर हाँ। फर्दर मुझे कोई सिस्टम चाहिए हुई या फिर मैंने आपसे मतलब क्लासेस आपकी ज्वाइन करनी हुई, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। हम्म। क्योंकि अभी तो इसमें मैंने तकरीबन 2 दिन पहले ना स्टार्ट किया, अभी मुझे कोई इतनी ज्यादा हो नो नहीं है इन चीजों की। मैं आपको अभी मैं सजेस्ट खुद नहीं से करूंगी, देख। मैं आपको बता देती जी हूँ जी। आगे आपकी बात। मैं एक ये करती हम्म। हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 घंटा क्लास लेती हूँ, उसके मैं 1,000 लेती हूँ, हम्म। और स्पीकिंग के सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करवा देती हूँ, उनकी ट्रिक्स और क्या होगी। फिर एक सही। नेक्स्ट डे में 1 घंटे क्लास लेती हूँ, और राइटिंग के जो भी जैसे मैं अभी बता रही थी ना, तो 1 घंटे में पूरा हम्म। गो थ्रू करा देती हूँ कि ये इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, सही। इसको ऐसे मतलब गाइडलाइन दे देती हूँ। इस तरह करती हूँ। फिर सही। एक दिन लिसनिंग का कर देती हूँ कि इसको आपने कैसे करना है, और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मैं अटेम्प्ट की वो मतलब सारे वो गाइडलाइंस और टिप्स एंड ट्रिक्स दे देती हूँ। और इनकी जो हिडन इंफॉर्मेशन है, या हम्म। टेम्पलेट को कैसे अटेम्प्ट करना है, टेम्पलेट को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने टेम्पलेट को कैसे एडजस्ट करना है, वो मैं 1 1 घंटे में सही। करके बता देती हूँ। बाकी वो खुद ही करते रहते हैं, फिर उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए खुद ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये यहाँ से भी मेरे ख्याल से मिलते हैं या नहीं मिलते, इनकी ऐप यूनी के जो टेम्पलेट्स हैं कि नहीं? नहीं, फ्री में पड़े हुए हैं। ये कौन सी वेबसाइट से आप कह रही हैं इनके हैं पड़े हुए? हाँ, सब कुछ पड़ा हुआ है।
फिर मुझे नहीं समझ आ रही सैप की कहाँ पे पड़ी हैं ये चीजें। ये आप खोले तो वहां पे एक बटन है, मटीरियल लिखा हुआ है, मैंने अभी खोला हुआ है। एक सेकंड में आपके साथ हम्म। स्क्रीन शेयर। ओके, जी जी। स्क्रीन दिख रही है आपको? ये मेन अभी पेज नहीं है। मैम, नहीं मैडम अभी मुझे नहीं शो हुई। अभी अभी हाँ देखिए। हाँ जी, अब हुई, जी जी अब हुई है मुझे, जी अब हो मेन रही है। पेज है, ठीक है। मेन पेज पे अगर आप ये देखें तो ये ऑप्शंस दी हुई हैं। मेन माई पेज पे कोर्सेज ऑप्शन में। दिए हुए ना, मटेरियल मटेरियल देखें तो ये पीछे दिया हुआ डाउनलोड्स वगैरह, डाउनलोड डिस्कशंस के साथ मटेरियल है। इस पे क्लिक करें। मेरे पास सही। क्योंकि पेड नहीं है, आपके पास है तो इसमें सारे आ जाएंगे। मैं देखती हूँ अभी ना, मेरे पास वैसे पेड़ है, मैंने परचेज की थी, मुझे किसी ने बताया था कि आप ये लें क्योंकि हमने ये चीजें जो है ना ये काम आती। बिल्कुल ऐसे ही माई बिल्कुल। कोर्सेज है। होम में जाना है आप कह रही हैं? स्टडी सेंटर है एक, मॉक मेन टेस्ट पेज आ आगे आ गया ना। जाते हैं। मेन पेज पे आप आ गई। जी मैं आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा अभी भी। यहाँ पे स्टडी टूल्स हैं कुछ, वोकेबलरी का है, शेडिंग का है, ऐप यूनी लेसन्स हैं, स्टडी। हाँ मटेरियल, सॉरी मिल गया मुझे मटेरियल्स में। आप हम्म। मटेरियल्स में कह रही हैं जाना है हमने? हाँ, आप क्लिक करें, आपके पास खुल जाएगा। मेरे पास खुल नहीं रहा क्योंकि मुझे बाय करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, इसमें भी जो है ना ये वही वाली बात है कि ये वोकेबलरी का है, नहीं, एग्जाम वोकेबलरी है, आप थोड़ा बेसिक उसको सर्च वोकेबलरी। करेंगे तो थोड़ा ब्राउज करेंगे आ जाएंगे। अभी स्क्रीन देखें, मेरी मेरी स्क्रीन देखें। जी अब मैं देख रही हूँ, जी जी। तो इसमें उन्होंने पूरा ब्रेकडाउन बनाया हुआ है। जी ये मेरे सामने आ गया, ये मैंने भी ओपन किया, ये ना हाँ, तो हो रहा है इसको ये आप ओपन है। स्टडी करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, किस तरह है। सही है। ये ब्रेकडाउन वगैरह ये सारा कुछ शो हो जाएगा आपको। अभी ये देखें, अभी ये पीटी कोर में पता नहीं ये वर्क करता है कि इसमें थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजों का तो फर्क है। थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं है। हाँ एक दो चीजों का ही है, मैंने देखा है। इसमें ना यही मेरे पास तो यही चीजें शो हो रही हैं कि ये इस तरह से। हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। चले, तो आप तो इसको देख लें, ब्रेकडाउन वगैरह देख लें इसका। हम्म। ठीक है। चले मैं ना बताऊंगी फिर मैडम आपको ना, अगर मैंने फिर फर्दर कंटिन्यू करना हुआ तो। चलें ठीक हाँ चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। है। नहीं, इट्स ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।